Honorable External Affairs Minister. Question number 31, Shrimati J.B. Mathiar Hisam. Honorable Minister. सभापति महोदय, उत्तर सभापटल पर रखा गया। Supplementary number 1, Shrimati J.B. Mathiar Hisam. So it is with deep sorrow that I wish to place on record a tragic incident which happened few days ago in Panjarakulli village in Wayanad. A 47-year-old tribal lady was attacked, stalked, and by a man-eating tiger. And there was widespread panic all over Wayanad and also Kerala. We are very concerned about the human-animal conflict that is constantly happening. It is just not tiger, leopard, wild boar, and wild elephants. So it is a matter of grave concern for the people of Wayanad at large, and also that why this is happening is also the climate impact is also there, but exceptionally what is the government doing in this matter is a grave concern. So that my question to the government is, in such circumstances where man-animal conflict is becoming a day-to-day scenario in Kerala, Western Ghats. Sir, man and animals, wild animals are being very cruel to people. Let us be kind to them, sir. Please. Sir, let me ask the question. Please. Sir, my question is, what steps the government is doing to put barriers and defense mechanism that man-animal conflict do not happen? Thank you. Also, when the agriculture is being affected, whether you will provide compensation for cultivation? One question only, please. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था वो क्लाइमेट चेंज को था लेकर के था, लेकिन उन्होंने जो उत्तर पूछा है अपने सप्लीमेंट क्वेश्चन का वो एक दूसरा प्रश्न है जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के है। जो केरल में इंसिडेंट हुआ है उसमें जो कंपनसेशन के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा। जहाँ तक कार्रवाई करने की बात है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 11B में स्टेट के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो पूरी तरीके से उनको पावर दी गई है कि वो इस प्रकार के जानवर जो हिंसक होकर के हानि पहुंचा रहे हैं उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं समझता हूं केरला सरकार इसके संबंध में संवेदनापूर्ण कार्रवाई करेगी। Second supplementary, please. So within first 24 hours of becoming President of United States, President Trump withdrew. Please your question. So this is climate, very relevant to India, sir. Very climate. President Trump withdrew the Paris Agreement, which is the commitment to climate thing. But now my question to the Honorable Minister is whether we as a government, the government is assessing the impact of US withdrawing from the Paris Agreement, because we are worried, thinking the immigration policy of Trump, there is absolutely nothing from the government of India that is happening. Thank you, please. So whether in Paris Agreement the government has taken any stand? Thank you. माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है वो मूल प्रश्न से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है। जो मल्टीलेटरल दुनिया भर की जितनी भी संधि वार्ताएं होती हैं उसमें प्रत्येक देश का अपना पक्ष है। भारत की स्पष्ट रूप से मान्यता है कि वो पेरिस एग्रीमेंट में समाधान का पार्ट है, समस्या का नहीं। धन्यवाद। माननीय ऋतव्रत बनर्जी। Sir, may supplementary mic, sir. Yes, your mic is on, I think, that side. Please. Yes. Sir, my supplementary is, in June 2024, sir, the World Bank approved 1.5 billion in loans for India for combating climate change. Over the last several months, the Indian rupee has been constantly falling against the US dollar and now has breached the 87 rupee mark, which is the lowest value of rupee in India's history. Please state, how is the government planning for repayment of these foreign loans and the interest on them when the outstanding amount is rising due to the falling rupee? Thank you. ये प्रश्न पूरक प्रश्न मूल प्रश्न के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। Thank you. माननीय डॉक्टर जॉन ब्रिटास।
Please, Dr. John Brittas. So this climate-induced heat waves is a major concern. And study says that between 2013-2022, India reported more than 10,000 deaths due to heat wave or sunstrokes. And so further, the economic hardships for the poor. A report, international report suggests that the loss to the households is more than 5% of their annual income. However, the heat wave is not categorized as a natural disaster, so we cannot give relief to the people. My question to the Honorable Ministry is that, considering the importance of this issue, will you impress upon the other ministries to ensure that heat wave and sunstrokes are also part of the natural disaster? Thank you, John Brittas. ये सच है कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है वो विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाता है और इसके संबंध में नेशनल क्लाइमेट का एक एक्शन प्लान है। स्टेट लेवल के हिसाब से भी स्टेट एक्शन प्लान है जिसको समय समय पर बातचीत के द्वारा पूरा किया जाता है। 5वां सप्लीमेंट्री रंजीत रंजन जी। आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये उत्तराखंड में हिमालय की गोद में चमोली जिले में शंकराचार्य द्वारा 8वीं-9वीं सदी में स्थापित हाट गांव एवं वहां स्थित बद्रीनाथ भगवान का विग्रह रूप लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसे एएसआई रिपोर्ट द्वारा भी प्रमाणित किया गया। गांव वाले संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इससे छल पूर्वक वहां पे बन रही बांध परियोजना के लिए डंपिंग जोन बनाने हेतु अधिग्रहण किया गया है। तो क्या मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हाट गांव को गोद में लेकर जो परंपरागत शैली है उसका पुनर्निर्माण करने के लिए जो डंपिंग जोन बनाया जा रहा है उसको हटाया जाएगा और उसको गोद लिया जाएगा और लक्ष्मी नारायण मंदिर को आप सेव करेंगे जो 4 धाम यात्रा के तहत ही आता है। धन्यवाद। 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 माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के संबंध में, हर प्रोजेक्ट में एक एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। अगर कोई उल्लंघन है तो माननीय सदस्य महोदय अगर मेरे ध्यान में पर्टिकुलर किस प्रोजेक्ट के लिए वो कह रही हैं ऐसा ध्यान कराएंगे तो निश्चित रूप से मैं वो मेरे से विचार विमर्श करेंगी तो प्रोजेक्ट अगर ध्यान दिलाएंगे तो उस पर विषय हो सकता है, लेकिन इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 32 डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। 32 फर्स्ट सप्लीमेंट्री on the table of the House. सर, पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं, लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। हाँ। वो मित्र वहाँ प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती करके भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड पे। आपका सवाल मैं बता रहा हूं, मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, ये सवाल है आपका, उसमें आप दूसरी चीज ना पूछे प्लीज। माननीय मंत्री जी प्लीज। Sir, there was no supplementary asked relevant to the question. However, the member, as is apparently a party attitude, keeps uttering lies in the House. Lies. The Prime Minister did not campaign for anybody. This is not the first time this party takes this position. So I urge him to withdraw this remark. No, आप जानते हैं रूल 238 में प्रमोद जी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के बारे में ऐसे एलिगेशन लगाने के पहले आपको माननीय चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा। इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट, नो दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। सेकंड सप्लीमेंट्री आप अगर पूछेंगे इस सवाल से जुड़ा तो मैं अलाउ करूंगा। प्लीज टेक योर सीट शक्ति सिंह। सेकंड सप्लीमेंट्री शक्ति सिंह गोहिल जी, प्लीज टेक योर सीट।
सर नासिर हुसैन जी, आपका सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल से जुड़ा होना चाहिए, प्लीज। सर प्लीज सर बोलो। सवाल, सेकंड सवाल। सर मैडम सर सेकंड पाल सर प्लीज सेकंड सवाल आप इससे जुड़ा पूछे, जो आपका प्रश्न है उसी की इजाजत मैं दूंगा। Sir, the foreign minister cannot use an unparliamentary word for lies. I am asking the second question. I was lying. How can you say that I was lying? Second question. Sir, the second question is whether the ministry has engaged with foreign governments to ensure protection of Indian students from discrimination or targeted violence in conflict-affected regions. Do they have a real-time data? What is the plan for evacuation? And especially in context of US, your question is over. They should your have question a is plan. over. They should take. Honorable Minister, please. Sir, the government carefully monitors the number of students in all foreign countries. We also carefully monitor their welfare. Wherever there is a situation of any tension or likelihood of violence, we alert students, as we had done in Ukraine. Where there is a requirement for us to take any further steps, like running a flight for their rescue or any other situation like that, we are prepared. We always have contingency plans for that. Thank you. Dr. Fauzia Khan. Please, nothing is going on record. Thank you, sir. Sir, can the minister please clarify the Indian government's official position on this issue and outline the interventions that we are planning to protect the affected Indian students regarding their safeguards for academic progress, financial investments, future prospects? How is the government going to plan for this, sir? And also one more thing I would like to ask the external minister, sir, that President Trump has made a statement on the Gaza Strip today, occupying of the Gaza Strip. Sir, what is India's stand on this? The entire world has retaliated otherwise. Please. Sir, the first supplementary, yes, we take a number of measures. For example, my own answer has given in detail what we did in the case of Ukraine. We allowed students to transfer to third countries. We allowed them, in many cases, depending on the year concerned, to do their classes online. We allowed them to do their practicals in India, in exception of the rules. So, depending on the situation, we have been very sympathetic, we have been very responsive. All embassies and all ambassadors have been told to take a special interest in the welfare of students. Whenever there is a situation, another example in my answer is that of Israel. There were about 900 students at the time when the Hamas attack happened. We brought back many of them, and many of them have since gone back. The numbers have grown. I want to assure, sir, the honourable member through you, that the welfare of students is something very close to the government's heart. Every embassy today is very proactive in that regard. Regarding the second supplementary, sir, it is not related to the question. Honorable M. Thambi Durai, fourth supplementary. Thank you, Deputy Chairman, sir. Minister has replied in his reply, because you know that most of our Indian students to get a medical education, they are going abroad. Because now we are facing that kind of crisis, there are some people who have to leave, they have to rehabilitate. For that, he mentioned National Medical Commission is no objection if they are transferring the students for Indian universities also. If they conduct the exam based on the examination, what is test examination. Sir, I am thankful for Honorable Prime Minister. He announced 75,000 medical seats are going to create in India now. And also, for example, if we take Tamil Nadu, during our Edappadi Palaniam, 23 medical colleges opened. With the help of the central government also 11 opened. Because strength has to be increased when the college is coming. My question is whether the external minister will persuade the NMC to increase the intake of the medical colleges
you have a special program, then only based on your test, that I want to know. Please from be that. brief. Please. That is, I want to know, sir. Thank you. So Not political statement. the supplementary does not directly pertain to my ministry. My understanding is that the number of medical colleges in the country have roughly doubled in the last 10 years. So there are many more opportunities for students. We understand that there are many more aspirants, but where my ministry is concerned, sir, those students who do go abroad for education, it is our duty, it is our obligation to look after their welfare, and I would like to assure the honourable member through you that we are very much cognizant and sincere about it. Mani Santosh Kumar P. Fifth supplement. Almost all parts of the world, either in Germany or in Canada. So do we have any idea of the exact number of students who are studying abroad, and what about the quality of these universities where Indian students are studying? So I would like to inform the honourable member through you, sir, that we have a rough idea of the number of students because we encourage them to register. But all students do not necessarily do that. They are roughly in excess of about 10 lakhs. In terms of the quality of universities, what many embassies do is on their website, they put up advisories. If there are universities, there are some countries where there were cases of fraudulent admission. We issue cautions in the website so that students who are planning to go to any country, they will naturally go to the website and check up, and they will be suitably warned. It is a very legitimate concern which the honourable member has raised. Students today need to be aware which are the good universities, which are not, which are universities which have some negative issue in the past, and our websites try to address that. Thank you. Question number 33. Sri Y. Venkat Subba Reddy. Question number 33, sir. माननीय मंत्री जी, इनके पटल पे रखा है. पहला supplementary. Subba Reddy. Sir, I would like to know from the Honorable Minister if the government has conducted any assessment on the impact of these tourism projects on local employment and economic growth. If so, what are the expected job creation numbers and infrastructure improvements in the selected sites? Supplementary number 1, sir. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के सैंक्शन करने से what exactly is the jobs are going to be created. मुझे लगता है माननीय सदस्य का प्रश्न का संदर्भ जो है, अभी हाल में पिछले 2 महीने पहले जो सैस्की के स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए थे उसके संदर्भ में होगा कि अभी क्योंकि प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किए हैं उसमें निश्चित रूप से जिन 5 विषयों का हमने संदर्भ लिया है उसमें टूरिज्म इकोसिस्टम, कनेक्टिविटी टू द साइट, कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मेजर्स, इन 4 चीज़ों को प्रमुखता के साथ में रखा है। लेकिन ये तय है कि जब कभी भी जिस जगह पे टूरिज्म पोटेंशियल ग्रो होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैनी फोल्ड जॉब क्रिएशन होता है, एंड टूरिज्म इज़ बीइंग कंसिडर्ड वर्ल्ड वाइज एट द सेकंड लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर। एग्जैक्ट नंबर एस्टिमेट करना मुझे लगता है इट इज़ सो टू अर्ली, बट निश्चित रूप से इन प्रोजेक्ट्स की साइट्स को जहाँ आइडेंटिफाई किया है हमने फ्यूचर में वहाँ फुटफॉल इंक्रीज हो। मैनी ऑफ द साइट्स विच हैज़ बीन कंसिडर्ड देयर साइट्स आर the alternative tourist destinations from the established destinations. So certainly when we create some infrastructure, tourism infrastructure, or establish a new tourism product, introduce a new tourism product, certainly the job creation with the footfall of the increasing footfall of the tourists, it increases. And I wish and we hope and we expect that that the many-fold job creation is going to happen. Second supplementary. Sir, with the coast, 950 kilometers long coast in Andhra Pradesh, has huge potential to develop tourism, sir. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, are there any plans by the Ministry to include some of the beach stations to develop under this capital investment development of tourism centers in Andhra Pradesh?
And sir, under temple tourism, how many places have been identified in Andhra Pradesh for development under this scheme, sir? Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय. Sabhapati Mahoday, tourism is a stateless subject, so primarily the project proposals are to be identified, the projects are to be identified and proposals are to be developed by the state governments. So that beach tourism, if any project is being deemed fit by the state government, they can send the project proposals to the government under the various schemes which are available. Looking towards the finances and the scope, we consider the projects and then we grant the assistance. As far as the Prasad scheme is concerned, which Honorable Member have mentioned about, there are 4 projects in Andhra Pradesh under the Prasad scheme have been sanctioned so far. Development of pilgrim amenities at Amravati, development of Sri Sailam temple, development of pilgrimage amenities at Sri Vardha Lakshmi Narsimha Swami Vari Devasthanam at Simhanchala, development of pilgrimage tourism infrastructure at Annavaram temple town. These projects are all of these projects are complete and financial progress is bearing development of pilgrimage tourism infrastructure at Annavaram temple. All the projects are complete and financial assistance have been provided 100%. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय. इस प्रश्न में आग्रह का समावेश ज़्यादा है प्रश्न से. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, हमारे बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट के अलावा जो शक्ति के केंद्र हैं, क्या उसके लिए बिहार सरकार की ओर से कोई प्रपोजल आया है? अगर नहीं तो क्या केंद्र प्रोएक्टिव होकर के इस पे कुछ पहलकदमी का विचार कर रहा है? थैंक यू. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचार का सम्मान करते हुए, जैसा मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्राइमरीली स्टेट को कंसीव करना होता है. इस तरह का प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर बिहार स्टेट से आता है तो निश्चित रूप से उसका कंसीडर किया जा सकता है. उसे तय नियमों की प्रक्रिया में यदि वो समाहित होता है तो उसे कंसीडर किया जा सकता है. माननीय संसद सदस्य भी जब इस विषय में या इस तरह के विषय में सीधे भारत सरकार को या मुझे इस तरह के पत्र लिखते हैं तो भी हम तय प्रक्रिया के अनुरूप राज्य सरकार को उसके कंसिडरेशन के लिए राज्य सरकार को भेजते हैं. इस तरह का कोई पत्र यदि प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हम राज्य सरकार को उसे भेजने में हम सबको प्रसन्नता होगी. माननीय साकेत गोखले. Thank you, sir. So the question is about the special assistance to states for capital investment, the SASCI scheme. So under this scheme, sir, the union government has given 172 crores to Andhra Pradesh, 147 crores to Bihar, 151 crores to Gujarat, 200 crores to Madhya Pradesh, and 154 crores to Uttar Pradesh. This is according to an answer tabled by the Honorable Minister in the Lok Sabha. So not a single rupee has been given to the state of West Bengal, and the union government has not covered. No, let me come to my question, sir. The union government has not covered a single tourism site in Bengal under this. So my question overall to the minister is, please state why the union government is constantly ignoring Bengal and giving a stepmotherly treatment when it comes to giving union government funds, not just funds we deserve, but also our dues from the central government. Thank you. माननीय मंत्री. मैं अत्यंत खेद के साथ में एक विषय को कहना चाहता हूँ. माननीय सदस्य ने अभी खड़े होकर के भारत सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की प्रयास किया है. माननीय सभापति महोदय, हमने 4 बार वेस्ट बंगाल सरकार को लिखित में भेजा, मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की. उसके बाद में भी बंगाल सरकार से प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया. प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया. और जैसा मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल राज्य सरकार को भेजना होता है, मुझे लगता है कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भारत सरकार नहीं कर रही है, कहीं और से इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है. अपने इसमें घूम करके देखना चाहिए. थैंक यू. डॉक्टर भागवत कराट. Honorable Deputy Chairman, sir, through you, I ask to Honorable Minister, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के माध्यम से नाइट
टूरिज्म और हिली टूरिज्म के लिए कुछ फंड्स दिए हैं क्या, इसके मैं जानना चाहता हूँ। नाइट टूरिज्म और हिली एरिया टूरिज्म। माननीय सभापति महोदय, जो स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए, उन प्रोजेक्ट्स में हमारे हिमालयी क्षेत्र में भी निश्चित ही हमने प्रोजेक्ट्स को कंसिडर किया है। नाइट टूरिज्म का स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल हमारे पास में मेरे संज्ञान में अब तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी रात्रि में कहीं टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर या रात को कहीं टूरिज्म ग्रो करने के लिए या किसी तरह की सफारीज ग्रो करने के लिए अगर इस तरह के प्रस्ताव आएंगे तो तय नियमों पर उस पर हम विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 माननीय श्री आदित्य प्रसाद। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया। पहला सप्लीमेंट्री आदित्य जी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड में अब तक स्वीकृत 8 मोबाइल टावरों में से एक भी टावर स्थापित नहीं किया गया है। इसके क्या कारण है? नियोजित टावरों में कार्य की शुरुआत कब होगी? क्या इन सभी टावरों की स्थापना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। सर, सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के समक्ष रखा है। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ सर कि पहली बार देश में एक ऐसी सरकार आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसने समस्त आदिवासी समाज के केवल गांव नहीं लेकिन टप्परों का भी विकास का सर्वांगीण विकास की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जन मन योजना 25,000 गांव एवं टप्परों को लेकर आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, वहां केवल दूरसंचार की सुविधा नहीं सर, पर उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सैनिटेशन, संपूर्ण पेयजल की समस्या का निवारण, संपूर्ण समस्या होलिस्टिक सॉल्यूशन सर, इन 25,000 गांवों के लिए कैबिनेट ने योजना नवंबर 2023 में पारित किया। 24,000 करोड़ रुपए का सर आदिवासी समाज के लिए। और उसी के अंतर्गत हमारे सहभागी मंत्रालय आदिवासी मंत्रालय ने एक सूचना हमें भेजी जुलाई 2024 में, मतलब कि केवल 6 महीने हुए हैं, गांव की लिस्ट के साथ जहां दूरसंचार की टावर्स की ज़रूरत है। उसका सर्वे दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा किया गया और सर्वे के अंतर्गत सर हम लोग ने 2,590 गांव चिन्हित किए, जहां 1,716 टावर्स हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये 15 राज्यों में हैं और 3 स्कीम्स के अंतर्गत हैं। इसमें जैसे मैंने कहा सर, केवल गांव शामिल नहीं हैं, मजरे टोले भी शामिल हैं सर। और कई गांव और मजरे टोलों में अभी भी लैटलॉन्ग की कठिनाई हो रही है, यूनिक सेंसस कोड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मुझे बड़ी खुशी है आपको रिपोर्ट करते हुए सर कि इन 2,590 गांव में से 901 गांव में हमारे टावर लग चुके हैं। 1,716 टावर्स में से 519 टावर्स लग चुके हैं। मतलब 6 महीने के अवधि में जुलाई जो 2024 से आज तक सर्वे हो चुका, रेखांकित हो चुके और टावर्स भी लग चुके। 35% रिकॉर्ड टाइम में हमने किया। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है तीसरा टर्म, मतलब 3 गुना ज़्यादा मेहनत, 3 गुना ज़्यादा शक्ति और 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट। और यही दूरसंचार मंत्रालय ने भी करने की कोशिश की है। जहाँ तक झारखंड की बात की गई सर, वहाँ जरूर हम लोग ने केवल 8 टावर्स नहीं लेकिन समूचे राज्य के लिए 1,987 टावर्स रेखांकित किए हैं। 2,471 गांव में 8 टावर जो बचे हुए हमारे मजरे टोले हैं उनके लिए रेखांकित किए हैं। 3 कठिनाई हैं सर। एक लैंड की कठिनाई है, झारखंड सरकार थोड़ी लेट लतीफ़ी कर रही है ज़मीन देने के लिए, टावर लगाने के लिए। राइट ऑफ वे की प्रॉब्लम है और उसी के साथ कुछ लोकेशंस इनएक्सेसिबल हैं। लेकिन फिर भी हम लगे हैं, अगर सांसद महोदय भी हमें मदद करें तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि झारखंड के गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा
और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज के विस्तार के लिए क्या कोई अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है, चूंकि उन क्षेत्रों में लोगों को मोबाइल से बात करने में बहुत कठिनाई होती है। धन्यवाद। Thank you, sir. So not only in Jharkhand, all the left-wing affected areas, sir, we have two schemes. One with 2,400 crores that was started in May 2024. And then left-wing affected areas number 2 with 2,200 crores that was started in October 21, sir. Both of them are supposed to be completed middle of 2025. So this includes all the left-wing affected areas, not only the Jharkhand. Thank you. Thank you. माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला। Priya Chairman, sir. Sir, mobile towers ultimately uses और affordability से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके संज्ञान में है कि हाल में ही 3 जुलाई 2024 को सभी सेलफोन कंपनीज ने एक कंसर्टेड तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों को, जो इनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल टैरिफ्स की कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी? धन्यवाद रणदीप जी। मैं रणदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया सदन के पटल पर और सदन के द्वारा देश की जनता को सूचित करने के लिए कि पिछले 10 साल की अवधि में देश में दूरसंचार का वातावरण में क्या बदलाव आया है, क्या क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं सर, मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज जयराम जी, नो नो नो, दिस इज नॉट। हाँ, प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोले, प्लीज। सर, माननीय मंत्री जी, सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर। प्लीज, बहुत खुजली आती है सर। प्लीज नहीं, और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग, मुझे विश्वास है सर कि प्लीज, मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। आप सवाल सर, मैं बता रहा था सर कि 90 करोड़ ग्राहक थे, आज 116 करोड़ ग्राहक है दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल के सेवा में। अगर हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें सर, 25 करोड़ ग्राहक थे 2014 में, आज करीब 97.4 ग्राहक। मैं वहाँ आ रहा हूँ रणदीप जी। थर्ड सर, ब्रॉडबैंड की हम बात करें जो 2 Gbps की से ज़्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में, आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। और जरूर जब ये नंबर बढ़ते हैं तो दाम पे भी पूरी तरह से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जो रणदीप जी ने कहा। और मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2024-25 में सर, 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। मतलब 94% गिरावट आई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। प्लीज नो नॉट रणदीप जी, प्लीज बैठे। 94% गिरावट आई। और मैं उनको सूचित ये भी करना चाहता हूं कि जो ब्रॉडबैंड 1 GB की कॉस्ट 2014 में होती थी, 270 रुपए पर GB होती थी, आज सर 10 साल बाद
पर जीबी कॉस्ट इस देश के अंदर 9 रुपए 70 पैसे है सर। 93% गिरावट आई है। आज भारत सर, मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलूंगी सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं, जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? और अगर कॉस्ट कॉल का 3 रुपए से 3 पैसे से 3.5 पैसे हो चुका तो अल्टीमेटली रिटर्न भी तो होना चाहिए। जो आज डेटा और वॉइस पे सबसे चीपेस्ट, सर आज वॉइस और डेटा में सबसे चीपेस्ट आज भारत है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। डॉक्टर सस्मित पात्रा, 4th supplementary. Honorable Deputy Chairman, sir, my specific question to the Honorable Minister has a brief preface and I'll be quick. Odisha is home to the largest number of particularly vulnerable tribal groups in India. And the answer also says that PVTG is probably a part of the habitation. So out of the 426 habitations, 61 have been completed. My question is, how many of these habitations belong to particularly vulnerable tribal groups in Odisha? How many have been completed? And by when all of it would be completed? Thank you. Thank you. Mani Mantri. Sasmit Bhai has asked a very pertinent question, and it goes back to the answer I gave in response to the first supplementary. The Prime Minister has very clearly resolved that all PVTG habitations must get full infrastructure, not only telecom infrastructure, but all social infrastructure, all physical infrastructure. And this is very much a part of that. 2595 habitations have been planned, 1716 towers have been planned, out of which the Orissa number here today is 331. All these 331 towers in 426 habitations are all PVTG. There is not a single one which is not PVTG. The total number of towers in Orissa is 4,511, covering 6064 habitations. But of that, the subset is 331 towers covering 426 habitations, all PVTG. And it's a commitment to do this as soon as possible. Yes, there are right-of-way issues. There are some areas where we have issues with regard to land allocation, but we are working at that to complete it as soon as possible. Dr. Sumer Singh Solanki. Dr. Sumer Singh Solanki, 5th supplementary and last. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संचार क्रांति भारत देश में आई है। मैं मध्य प्रदेश के उस पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, जहां पर नेटवर्क की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में जो नेटवर्क के लिए टावर लगाने का काम किया जा रहा है और साथ ही आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों को निरंतर संचार की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, ये कब तक पूर्ण हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर? धन्यवाद। सांसद महोदय को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए जो हम लोग ने आवंटित किए हैं, कुल मिलाकर 2202 गांव, जहां 1650 टावर्स लगाए जाएंगे,
उसमें से वर्तमान में 981 गांव में 773 टावर ऑलरेडी लग चुके हैं। और जहां तक हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां 138 टावर करीब करीब 160 गांव में लगाने का हम लोगों का निर्णय लिया गया है और शीघ्र ही शीघ्र इसे कंप्लीट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई 2024 में ही इनकी पूरी सूचना लिस्ट हमें आदिवासी मंत्रालय से हमें मिला है। हमने सर्वे भी कर लिया है और कार्य भी प्रगति पर है। जल्द से जल्द हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, रिकॉर्ड टाइम में हम लोग ख़त्म करेंगे। माननीय श्री धैर्य सिंह पाटिल। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 34 उत्तर सदन के पटल पे रखा है। पहला सप्लीमेंट्री धैर्यशील जी। आदरणीय सभापति महोदय, पंढरपुर की वारी जो 1000 सालों की जो परंपरा है, उसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान मिलने के लिए अध्यक्ष महोदय, ये मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, पंढरपुर की वारी जो पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के यात्रा रहती है और 1000 सालों से अध्यक्ष महोदय चली आ रही है। अनेक जाति, धर्म, पंथ, प्रांत इस भेदाभेद को भेदते हुए अध्यक्ष महोदय समता और एकता, बंधुता का पाठ पढ़ाते हुए 10 लाख वारकरी संप्रदाय के भक्त लोग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों से, अध्यक्ष महोदय कर्नाटक के गांवों से ये चले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, वारकरी संप्रदाय की ये परंपरा ने संत नामदेव, संत ज्ञानोबा राय, संत एकनाथ महाराज, संत तुकोबा राय, इसके जैसे संतों ने अपने विचारों से ये महाराष्ट्र की भूमि को परिपोषित किया है। आज का जो प्रगतिशील और उन्नत सामाजिक महाराष्ट्र दिखता है, उसका कारण पंढरपुर की वारी और वारकरी संप्रदाय ने जो सिखाया हुआ बंधुता और न्याय का अध्यक्ष महोदय पाठ है। सवाल अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये है कि सांस्कृतिक दृष्टया और सामाजिक दृष्टया उन्नत ये संस्कृति, ये परंपरा, इसका यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में समावेश होने के लिए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय कुछ कदम उठाएगी क्या? ये मेरा अध्यक्ष महोदय प्रश्न है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। भारत की संस्कृति जो विविधताओं से भरी हुई है, उसमें अनेक तरह की ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी रीतियां हैं, ऐसे उत्सव हैं और अनेक तरह के ऐसे आयोजन हैं जो सदियों से प्रथा में जो है वो अपनाए जा रहे हैं। और निश्चित ही ये सब इस तरह के आयोजन विविधताओं में बसे हुए भारत को एकता का स्वरूप प्रदान करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्रिप्शन की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें प्रपोजल या तो राज्य सरकार, भारत सरकार को, या सीधे संगीत नाटक अकादमी जो ICH की नोडल डिवीज़न है उसको भेजती है। उसके बाद नोडल एजेंसी उसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद उस पर जो है नेशनल इन्वेंट्री लिस्ट जो है सूची उसमें समाहित किया जाता है और उसके बाद में उसको जो है भारत सरकार की तरफ से यूनेस्को को नामित किया जाता है। अब तक भारत सरकार के प्रयासों से 15 ऐसे हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को इस सूची में समाहित किया गया है। आने वाले वर्ष के लिए, क्योंकि इसमें व्यवस्था के अनुरूप 2 साल में एक देश एक ही प्रपोजल मूव कर सकता है, मैं माननीय सदस्यों के और आपके माध्यम से देश के संज्ञान में लाने के लिए कि इस वर्ष के प्रपोजल के रूप में 2023 में जो हमने सबमिट किया है, जिसको 2025 में जिसे कंसिडर करके इंस्क्राइब किया जाएगा, हमने दिवाली फेस्टिवल जो भारत को एकता के सूत्र में बांधता है उसे इंस्क्राइब करने के लिए नामित किया है। आने वाले समय में इस तरह के और प्रपोजल्स जो भारत सरकार के संज्ञान में लाए जाते हैं या लाए जाएंगे, उन सब को इस प्रक्रिया के तहत ला करके हम आने वाले समय में नामित किया जा सके, इसके लिए निरंतर काम करें। माननीय धैर्यशील जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, इस वारकरी संप्रदाय की जो परंपरा है, जो शिकवण है, वो काव्य स्वरूप में जो बताई जाती है उसको अभंग कहते हैं। अभंग परंपरा रहती है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में
संत तुकाराम महाराजों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजों का जो अभंग परंपरा है उसको संरक्षण मिलने के लिए उसका डिजिटल दस्तावेजीकरण करने का कोई प्रस्ताव केंद्र शासन का सांस्कृतिक मंत्रालय कुछ करेगा क्या? उसके लिए कुछ रचनात्मक उपाय करेंगे क्या और वो क्या रहेंगे? धन्यवाद। महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस तरह के सारे हमारी ऐसी सारी संस्कृति के विभिन्न अंग उपांग जो समय के साथ में कहीं विलुप्त हो रहे हैं या क्षीण हो रहे हैं, उन सब को समर्थन करने के लिए अनेक तरह के प्रयास करती है। इस फेस्टिवल जिसके बारे में माननीय सदस्य ने अभी हम सब के सामने इस प्रश्न को रखा है, संगीत नाटक अकादमी ने संत तुकाराम महाराज भवन में स्थानीय प्रशासन के साथ में और मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर के हमने जो है एक कार्यक्रम का आयोजन जगत गुरु प्रवाह नाम से किया, जो है इसके साथ में किया था। इसके अतिरिक्त भी इस तरह के प्रपोजल्स, डिजिटाइजेशन के प्रपोजल माननीय सदस्यों के संज्ञान में आया होगा कि भारत सरकार के अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पढ़ा है उसमें भी हमने इस तरह की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारी धरोहर हैं, हज़ारों साल की लिखित धरोहर जो है, उन सब को भी डिजिटाइज करने के लिए काम किया है। आने वाले समय में उपलब्ध संसाधनों की सीमितता के साथ में उसको संज्ञान में रखते हुए इस तरह के सारे विषय जो हैं उनको हम अमूर्त ऐसी हेरिटेज को हम डिजिटाइज करके संरक्षित कर सकें, इस पर काम करें। धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री, माननीय रजनी पाटिल जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे महाराष्ट्र के लिए हमारे सदस्य ने उठाया है। हम उस इलाके से आते हैं और हमारे यहाँ जब पंढरपुर की वारी होती है वो कोई फेस्टिवल नहीं होता, मैं मंत्री जी को करेक्ट करना चाहती हूँ। वो 15-20 दिन वो लोग चलते रहते हैं सब जगह से, रूरल एरिया से, और चलते 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 वो पंढरपुर तक आते हैं। और वहाँ पे पहली बार हिंदुस्तान में शायद पहली बार जातीय निर्मूलन का जो मंत्र है, मूल मंत्र, वो वहाँ रचा गया था, क्योंकि वहाँ पे जात पात कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपकी तरफ से पहल करके कुछ किया गया, क्योंकि वो सब लोग वारकरी होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, सिंपल लोग होते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कोशिश करेंगे तो हम सब लोग साइन करके देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको महत्व देना जरूरी है और उसको ये लिस्ट में लाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सवाल आपका, तो ये करेंगे क्या? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर के समय में भी ये निवेदन किया था कि भारत की संस्कृति में अनेक ऐसे उत्सव हैं। माननीय सदस्य ने कहा, मैं सम्मान करता हूं कि पंढरपुर की वारी जो है वो जातीय उन्मूलन से परे है और जातीय उन्मूलन का संदेश देती है, जातीय विभेद को मिटाती है। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य ने भी इस बात का उल्लेख अपने प्रश्न में किया है। मैंने कहा था, मैंने निवेदन किया कि कुंभ का फेस्टिवल, हिंदुस्तान में ऐसे अनेक ऐसे उत्सव हैं जहां जातीय विभेद समाप्त हो जाता है। अभी महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, जहां कुल 45 दिन में लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे। न कोई किसी से जाति पूछता है, न कोई किसी के समाज का भेद पूछता है, न कोई पूजा पद्धति की चर्चा करता है, न वहाँ कोई उसके न उस विषय में कोई वहाँ किसी की सामाजिक हैसियत के बारे में प्रश्न करता है। सभी लोग साथ खड़े होते हैं। ऐसे अनेक उत्सव देश भर में अनेक जगहों पर इस तरह के उत्सव आयोजित होते हैं जहाँ जाति, समाज, वर्ग, पूजा पद्धति, इन सब का भेद मिटा करके लोग आस्था के भाव के साथ में वहाँ एकत्रित आते हैं। और हम सब उन उत्सवों को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पैदल यात्रा के रूप में हो या अन्य किसी रूप में, उन सब को हम फेस्टिवल्स के रूप में देखते हैं। निश्चित ही ऐसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स पर को हम सब लोग और अधिक सपोर्ट करें, इस पर निरंतर प्रयास करते हैं। मैंने जैसा कहा कि संस्कृति मंत्रालय इस फेस्टिवल के साथ में जुड़ करके स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर के हमारे स्कोप ऑफ द वर्क में जितने विषय हैं उन सब के ऊपर निरंतर हर बार काम करता है और भी आगे इस विषय में काम करेंगे। इस प्रपोजल की प्रक्रिया जो मैंने आप सबके सामने रखी है, प्रपोजल की प्रक्रिया के पहले चरण में अभी इस तरह का प्रपोजल प्राप्त हुआ है। इस पर आगे विचार होने के बाद में जिस तरह से निर्णय होगा, उस निर्णय को आने वाले भविष्य में हम सब लोग आपके सामने साझा कर सकेंगे। डॉक्टर अजीत गोपचड़े। धन्यवाद उपसभापति महोदय।
महाराष्ट्र में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की अजंता एलोरा गुफाएं और परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कर्मभूमि संभाजीनगर, मराठवाड़ा के 3 ज्योतिर्लिंग, नांदेड़ में परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पुण्य पावन भूमि और संघ के परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल गांव कंदकुर्ती है। सरस्वती का बासर का मंदिर है। बीदर में गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। नरसिंह भगवान की गुफाएं तथा तुलजा भवानी माता को जोड़ने वाला प्राचीन कालीन शालिवाहन कालीन कॉरिडोर, ये सांस्कृतिक विकास करने हेतु मैंने आपको निवेदन दिया था। माननीय मंत्री जी से मेरा ये प्रश्न है कि यह शालिवाहन कालीन कॉरिडोर हमारे महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में क्या सांस्कृतिक मंत्रालय इसके लिए कुछ आगे कदम बढ़ा रहा है क्या? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, उसके मंत्रालय से भी संबद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन मैंने पिछले पर्यटन मंत्रालय के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि इस तरह के सारे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, क्योंकि राज्य सरकार का विषय होने के नाते राज्य सरकार से आते हैं। माननीय सदस्य ने मुझे पत्र लिखा था, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमने महाराष्ट्र सरकार को भेजा है। आप महाराष्ट्र सरकार से चर्चा करके इस तरह के प्रोजेक्ट प्रपोजल को जब भारत सरकार में राज्य की तरफ से प्रेषित किया जाएगा तो तय स्कीम्स में निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाता है, आगे भी उस पर विचार हो। 5वां सप्लीमेंट्री माननीय श्री निरंजन विसी। माननीय निरंजन विसी। I would like to know from Honorable Minister that whether government has planned to include the natural heritage site and cultural heritage site like Gandhamardhan mountain range, Bhim Pahad hills, Chandeli Pahad hills of Balangir district in the state of Odisha. माननीय निरंजन जी, ये सवाल जुड़ा है संत तुकाराम वारी पंढरपुर से। In the UNESCO heritage, आपका सवाल अलग है, प्लीज। थैंक यू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। आपने दूसरा सवाल पूछा, इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आपको पूछने की इजाजत मैं दे सकता हूँ। पंढरपुर पर थैंक यू। माननीय राजीव सुख, अंतिम सप्लीमेंट। सर, मंत्री जी ने और इसमें मैंने देखा कि यूनेस्को की लिस्ट के बारे में बात की, इसी तरह से जो यूनिक हेरिटेज लिस्ट उसके बारे में बात की। अगर हम कोर वाट को देखो, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारे यहाँ तो एक से एक धरोहरें हैं, एक से एक त्यौहार हैं। दिवाली के लिए उन्होंने बताया शामिल कराने का प्रयास कर रहे, बहुत अच्छी बात है। होली, दिवाली, वसंत पंचमी सब जगह मनाई जाती, तो इन सारे के लिए हमारा कोई प्रयास मंत्री जी जानना चाहते हैं क्यों नहीं होता है। आप मीनाक्षी टेम्पल देखिए, वहाँ का, मदुरै का, क्यों नहीं यूनियन हेरिटेज लिस्ट में आ सकता है। लेकिन सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर ये इस तरफ प्रयास किया जाए, आपने जो शुरू किया है, तो और किन किन धरोहरों को ले सकते, कौन कौन त्यौहार पे ले सकते, जैसे पंढरपुर वाले के बारे में आपने सवाल पूछे। क्यों बोलते यार, मेरी समझ नहीं कि हमारी पार्टी में या हमारी पार्टी से बाहर है, हमेशा अपने मेंबर को हमेशा ये करने की कोशिश करते हैं, आप रिडिक्यूल करने की। ये कौन सी बात है? पूरे हाउस को याद दिलाते हैं कि सवाल पूछे, आप आपको भी गलत बात है। तो इसका मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह अगर यूनियन हेरिटेज लिस्ट वो इसमें है, इसमें जवाब में है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और यूनेस्को लिस्ट में आप कौन कौन भारतीय धरोहरों को शामिल कराने का प्रयास करें? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, क्यों करते हो सब बाद में बोलते? माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए, दोनों सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि टेंजिबल और इंटेंजिबल इन दोनों सूचियों में दर्ज कराने के लिए, टेंजिबल हेरिटेज की सूची में दर्ज कराने के लिए एक देश एक साल में एक ही प्रपोजल जो है वो भेज सकता है। एक देश का एक ही प्रपोजल। माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, प्रश्न पूछने के बाद में शायद वो एक दूसरे के साथ में अभी तक व्यस्त है प्रश्न के काल से लेकर के। आपका उत्तर। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय दोनों सदस्यों को ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सामंजस्य के लिए बहुत बड़ा स्थान है। टेंजिबल हेरिटेज एसेट जो है उसमें साल में एक प्रपोजल एक देश मूव कर सकता है, और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अंकुर वाट की चर्चा की, मैं सदन और देश के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की एएसआई ने, माननीय विदेश मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदत्त संसाधनों के आधार पर हमने अंकुर वाट टेम्पल को रिस्टोर करने का काम किया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी
भारत में इतने सारे इस तरह के टेंजिबल एसेट्स हैं हमारे पास में, इतनी धरोहरें हैं कि हम एक साल में एक की जो लिमिटेशन के अंतर्गत जो सूची तय होती है, क्योंकि बहुत लंबी नेशनल लिस्ट हमारे पास में, हम उन सबको जो है सूचीबद्ध कराने का प्रयास करते हैं। पिछले 4-5 साल से लगातार हर साल एक धरोहर हमारी सम्मिलित होती है। इस बार भी जो है 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की भारत में हुई मीटिंग में भी हमारे असम के मोइदाम्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में समाहित किया गया था। इसके अतिरिक्त इंटेंजिबल एसेट्स के दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि 2 साल में एक इंस्क्राइब कराने का हमारे पास में अवसर होता है, लेकिन ऐसे मल्टीलैटरल जो है हेरिटेज लिस्ट जो उनको अगर हम चाहें तो एक बार में उसके लिए कोई समय सीमा या कोई नंबर्स की सीमा नहीं है। नवरोज फेस्टिवल को पहले भारत सरकार ने नामित करके इस तरह की इंटेंजिबल एसेट में लिया था, और ऐसे इंटेंजिबल हेरिटेज हमारी एसेट्स जो हैं उनको इंस्क्राइब कराने के लिए जो मल्टीलैटरल एसेट्स हैं उनके लिए भी भारत सरकार लीडरशिप लेके क्वेश्चन और ओवर। धन्यवाद।